कर लेंगे। पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज हुआ और इस विशेष सत्र में अन्य मुद्दों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। तो प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहस के दौरान अधिकतर सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान बहस का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम दमनकारी है, इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस कदम से पंजाब के अधिकारों पर चोट की है। जी, तो सेंट्रल सर्विस रूल लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया। मैं यही बेनती करदा कि इस प्रस्ताव ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ BBMB ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हैं और सर्वसम्मति से केंद्रीय सेवा कानून के खिलाफ ये प्रस्ताव विशेष सत्र में पारित हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि सर्वसम्मति से हो गया है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए अनिल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय सेवा नियम लागू किए गए चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर और BBMB का जो मसला है वो पिछले समय से चला आ रहा है। इन मुद्दों को लेकर आज स्पेशल सेशन बुलाया गया था और सेशन के दौरान लगभग सभी विधायक जो आम आदमी पार्टी के विधायक उनका साथ कांग्रेसी विधायकों की तरफ से भी दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सदन में अपनी बात रखी। ये कहा कि किसी भी तरीके से पंजाब के जो हित हैं इससे प्रभावित नहीं होते हैं। पंजाब सरकार को अपने जो वेतनमान है कर्मचारियों का
वो बढ़ा दिया जाए, जिससे चंडीगढ़ के जो कर्मचारी है वो फिर से एक बार फिर पंजाब में के जो सर्विस रूल्स हैं उन्हें अपनाने की मांग करें। हालांकि उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी गई, इसके बाद उनकी तरफ से सदन से वॉकआउट भी कर दिया गया और इसके बाद सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। प्रस्ताव ये रहा कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। इसके अलावा सर्विस रूल्स को लेकर जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और बीबीएमबी को लेकर जिस तरीके से 2 सदस्य रहते थे पंजाब और हरियाणा के, फिलहाल उसको लेकर पिछले दिनों नया फैसला लिया गया था। इन फैसलों को लेकर भी दखल केंद्र सरकार की तरफ से ना हो पंजाब के अधिकारों पर, यह प्रस्ताव पास किया गया और ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा भी जब तमाम सदस्यों की तरफ से अपनी बात रखी गई, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, आम आदमी पार्टी के विधायक हो, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, कानूनी जो कार्रवाई है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो सभी जो विधायक थे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अकाली दल के विधायकों की तरफ से भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। बिल्कुल अनिल, एक सवाल यहां पर यह उठता है क्योंकि देखिए केंद्र सरकार भी इसे लेकर लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आई, अब इसके खिलाफ मान सरकार ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करा लिया है। तो ऐसे में देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों ही सरकारों का सामने आ रहा है। तो क्या ये समझा जाए, चूंकि यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा दिख रहा है, अब यह मामला पूरी तरह से कोर्ट का रुख कर सकता है? बिल्कुल, देखिए एक प्रस्ताव पास किया गया अभी पंजाब विधानसभा में और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अब पंजाब सरकार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से जो रेजोल्यूशन पास किया गया, एक तरीके से नाराजगी उसमें जताई जाएगी। इसके बाद किस तरीके से फैसला केंद्र सरकार लेती है ये देखना होगा और आगे भी इस पूरे मामले में लड़ाई जारी रहेगी, ये भगवंत मान की तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि अपने अधिकार लिए जाएंगे। उसमें एक रास्ता कोर्ट का भी है। इससे पहले ये कहा गया कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सभी जो विधायक हैं वो धरना भी देंगे और कोर्ट का भी एक विकल्प जो है वो पंजाब सरकार के पास है। जी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से चंडीगढ़ को लेकर सियासत इस वक्त गर्म होती नजर आ रही है, इस सियासी लड़ाई में, सियासी जंग में हित अहित की बात करें तो अनिल क्या नजर आता है? क्या वाकई में जो केंद्र सरकार की तरफ से नियम लागू किया गया वो चंडीगढ़ वासियों के हित में है, या जो पंजाब की सरकार या पंजाब के ज्यादातर मैं विधायकों की बात करूं बीजेपी को छोड़कर, वो कहीं ना कहीं हितकारी बात कर रहे हैं जो पंजाब के लोगों के लिए बेनिफिट वाली बात हो सकती है? देखिए फिलहाल चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिहाज से बात की जाए के तमाम कर्मचारी केंद्र सरकार के सर्विस रूल्स का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आदेश जारी हुआ है, इस का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद कई तरह के भत्ते जो हैं वो केंद्र के कर्मचारियों को मिलते थे, वो अब चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलेंगे। दूसरी तरफ विरोध जरूर इस फैसले का राजनीतिक तौर पर हो रहा है। आज प्रस्ताव पास कर दिया गया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ पंजाब को देने को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया है उस पर हरियाणा की तरफ से भी रिएक्शन आया। अभय चौटाला की तरफ से अब मांग की गई है कि हरियाणा विधानसभा का भी एक सत्र बुलाना चाहिए और जिस तरीके से पंजाब की तरफ से चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी ठोकी गई है पूरी तरीके से, इस पर विशेष सत्र बुलाकर हरियाणा को भी चाहिए कि एक प्रस्ताव पास करके और जो कदम उठाया गया पंजाब सरकार की तरफ से उस पर अपना कदम उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो अनिल हमें जानकारी दे रहे थे जो प्रस्ताव पारित हुआ है विशेष सत्र में और उसी को लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं गर्म होती दिखाई दे रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का उछला, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।